सो আজি আমার মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির ক্লাস নাম্বার 5 ক্লাস নাম্বার 4 ক্লাস নাম্বার 4 লৈকে আমি কি পালো যদি নোট বনোৱা আছে বা চাই লওক ওয়ারেন হেষ্টিং রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ 1773 যেটো বাৰু ব্রিটিশ ক্রাউনে দি আনা ফার্স্ট কিবা ল ইন্ডিয়ান সয়েলত ফার্স্ট ল আছিল अपने ब्रैकेटत लिखिब पारे जे फर्स्ट लॉ बाय द ब्रिटिश क्राउन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 दिस वाज द फर्स्ट लॉ बाय ब्रिटिश क्राउन इन इंडियन सॉइल इंडियन माते फर्स्ट लॉ आसल ओके सो এই 1773 एक्टर जरियते वारेन हेस्टिंगक बनवा हल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सो যদি क्वेश्चन आहे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आंसर होबो अपना वारेन हेस्टिंग যদি क्वेश्चन आहे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल आंसर होबो रबार्ट क्लाइव वेरी गुड यार पिছত वारेन हेस्टिंग আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি লিটারেচার লৈ কাম হল হয়নে তেখেতৰ ইন্টেনশন আছিল যে আমাৰ গীতা ভগৱত এইবিলাক যাতে ট্ৰান্সলেট কৰা হয় এইবিলাক হল ইয়াৰ পিছত 1784 ত এটা এক্ট আহিলে নাম হল পিটস ইণ্ডিয়া এক্ট পিটস ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784 আৰু এই এক্টৰ জৰিয়তে এটো কোৱা হৈছিল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিন্তু মালিক নহয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জাস্ট ব্রিটিশ ক্রাউনের একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন্ডিয়া জাস্ট খালি কামখিনি কৰাৰ পৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৰাখা হৈছে আৰু হৈ গল ইয়াৰ পিছত ওয়ারেন হেষ্টিং ৰাজা চৈত সিং বুলি এজন আছিল বেনাৰসৰ ৰাজা চৈত সিং মহাৰাজা চৈত সিং সো তেখেতে কিবা এটা মাৰ্ডাৰ কেছত তেখেতক এলিগেশন আছিল তেখেতৰ ওপৰত সো এই ওয়ারেন হেষ্টিং তেখেতৰ পৰা কিবা এটা ব্ৰাইব লৈছিল ঘুষ লৈছিল আৰু এই ঘুষ লোৱাটো एक्सपोज हो गई स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उनके साथ भी तो स्टिंग ऑपरेशन होने के बाद जब वारेन हेस्टिंग का जब ये घूस लेने वाला बात सामने आया तब उनको अपने देश में बुलाया गया कि आइए बहुत हो गया अभी आइए हवेली पे तो देखे तो माता हल आको ब्रिटिश यार पिछत 13 बছर 13 ইয়ার্স लेके तेखर ऊपर कोर्ट केस ओके सो 1785 वारेन हेस्टिंगक इम्पिच करा हल लिखा হৈছিল ना हाँ 1785 में वारेन हेस्टिंग को अपने पोस्ट से हटाया गया था और तो इंग्लैंड माने ब्रिटेन मातिছিল আৰু सो आमार ऑलरेडी वारेन हेस्टिंग 1785 लेके कहानी मोटामुटी हेक আজি আমি स्टार्ट करिम 1786 আজি আমি स्टार्ट करिम 1786 क्लियर सो 1786 ৰ পৰা আজি আমাৰ कहानी स्टार्ट হ'ব 1786 वारेन हेस्टिंग जोৱাৰ পিছত गवर्नर जनरल हल लॉर्ड कॉर्नवालिस वारेन हेस्टिंगक तो माति दिले वारेन हेस्टिंग गल এতিয়া আমাৰ সিনত আমাৰ স্টোৰী এতিয়া আগত লৈ যোৱাৰ বাবে আহিল কোন লৰ্ড কৰ্নৱালিস এতিয়া মনত কৰক वारेन हेस्टिंग থাকাৰ সময়তে তেখেতে বস্তু চাইছিল যে আমাৰ ক্লাৰ্কৰ বহুত প্ৰয়োজন মই লিখিছিলো বস্তুখিনি ক্লাৰ্কৰ বহুত প্ৰয়োজন বাট যদি মই ব্রিটিশ ক্লাৰ্ক যদি মই বেছি ৰিক্ৰুটমেন্ট দিও তেখেতসকলৰ স্যালাৰি বহুত বেছি দিব লাগে 50 रुपीस সামথিং আৰু ইফালে আমাৰ ইন্ডিয়ান ক্লাৰ্ক ললে বাৰু সেম কামে কৰিব 7 টকাত হৈ যায় বাৰু ডিমান্ড কম সো মই ব্রিটিশৰ ক্লাৰ্ক মই কিয় তাতে নিযুক্তি দিম এই কাৰণে তেখেতে বহুত কেইজন ক্লাৰ্ক লৈছিল বাট যেতিয়া কৰ্নৱালিস আহিল কৰ্নৱালিসে এইটো বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে আমি অকল ক্লাৰ্ক বহালে কোনো কাম নহব बिकॉज क्लर्क क्या करेगा आप सिर्फ क्लर्क को देंगे क्लर्क सिर्फ उसको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करेगा लेकिन जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है उसको चीज को मेंटेन करना होगा वो आपका बहुत जरूरी है तो कॉर्नवालिस से बोले कि हम लोग को सिर्फ क्लर्क से काम नहीं होगा वी नीड एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉर्नवालिस से की बोले कॉर्नवालिस से की कोशिश we need not only clerks আমার অকল ক্লার্কে দি কাম নহব আমার লাগে এডমিনিস্ট্রেটর বাট অলসো এডমিনিস্ট্রেটর্স মানে যিসকলে এডমিনিস্ট্রেশনৰ কামখিনি কৰিব যেনে আজিৰ দিনত আমাৰ ডিসি ডিএম এসডিএম হয়নে এডমিনিস্ট্রেটৰ কাম যিসকলে কৰে আৰু ক্লিয়াৰ এই কাৰণে এই 1786 ত কৰ্নৱালিসে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে কৰ্নৱালিসে কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে ICS
ইণ্ডিয়ান চিভিল সার্ভিস কর্নওয়ালিসে ইন্ট্রোডিউস কৰিলে ICS ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস কৰিলে কথাখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল বাট এই ICS যেটো কৰা হৈছিল তাতে কিন্তু কেইটামান ইণ্ডিয়াৰ বাবে বস্তুখিনি ইমান ফেভাৰেবল নাছিল ICS যেটো ইন্ট্রোডিউস কৰা হৈছিল নিশ্চয়কৈ ইণ্ডিয়ান ইয়াতে এক্সাম দিয়াৰ বাবে এলিজিবল আছিল বাট ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে ইমান সুবিধা নাছিল মেইনলি দুটা কাৰণ দুটা ৰিজন আছিল কাৰণ কি যেটো এক্সাম হ'ব ICS পাস কৰে যেটো আজিৰ দিনত UPSC বুলি ক'ব পাৰে যেটো এক্সাম আছিল এই এক্সামটো ইণ্ডিয়াত নহয় এক্সাম used to be held court London में इसका एग्जाम होता था पहला बात दूसरा बात क्या है मैक्सिमम एज फॉर इंडियंस বাবে मैक्सिमम एज এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বাৰু কিমান ৰখা হৈছিল এক্সাম দিয়াৰ বাবে 21 ইয়াৰ্স বস্তুটো ভাবক 21 বছৰ যদি পাৰ হয় আপুনি এক্সাম দিব নোৱাৰে সো আপুনি 21 বছৰৰ পৰা সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি এক্সাম দিব পাৰে ठीक है अपने भाषा में इसको लिखते जाइए अदरवाइज बाद में मिलाने में दिक्कत होगा सो ICS एग्जाम निश्चय के इंट्रोड्यूस करा हल बट दुटा बस्तु हो गल जे एग्जाम বাৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত হোৱা নাছিল লণ্ডনত হৈছিল আৰু ম্যাক্সিমাম এজ ফৰ মানে ম্যাক্সিমাম এলিজিবিলিটি এজৰ যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল 21 বছৰ ক্লিয়াৰ ইয়াৰ লগতে এটা ইনফৰমেশন নিশ্চয় আমি আৰু পিছত চাম বাৰু যে আমাৰ ফাৰ্স্ট ICS কোন আছিল কোন ইয়াৰত সাবো ইন্ট্রোডিউস হৈছিল 1786 বাট ফার্স্ট ইন্ডিয়াৰ পৰা ICS হৈছিল যাও পাৰো না নেক্সট ফার্স্ট ইন্ডিয়াৰ পৰা ICS হৈছিল 1862 सत्येंद्र नाथ टैगोर ফার্স্ট ICS হৈছিল সত্যেন্দ্র নাথ টেগোর তেখেতে কোন হয় তেখেতে অবভিয়াসলি ফার্স্ট ICS আৰু যদি অলপ ৰিলেশন যদি চাব বিচাৰে তেখেতে আছিল ব্রাদার অফ রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর क्लियर सो 1862 আমার ইন্ডিয়ার ফার্স্ট ICS অফিসার হল সত্যেন্দ্রনাথ ট্যাগোর ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু ক্লিয়ার ICS লিখিব পারে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু ক্লিয়ার ICS সত্যেন্দ্রনাথ ট্যাগোর 1862 হি ওয়াজ দ্য ব্রাদার অফ রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর হৈ গল এতিয়া আপোনালোকে যদি মনত আছে অলরেডি আমার মাইসোর ওয়ার এংলো মাইসোর ওয়ার কেটা হয়েছিল এতিয়ালৈকে দুটা অলরেडी हो गल वेरी गुड फर्स्ट एंग्लो माइसोर वार में किसके साथ किसका लड़ाई हुआ था ब्रिटिश आया था निजाम ऑफ हैदराबाद को लेके आया था साथ में आपका मराठा को भी लेके आया था और माइसोर की तरफ से कौन था हैदर अली था बाद में हैदर अली डिप्लोमेटिकली बात करके क्या किया मराठा को अपने टीम में ले लिया और वो हार गया यार पिछले नेक्स्ट बैटल की होल की होल ना ना एंग्लो मराठा नय मैं माइसोर कथा কৈ আছো मराठा तो बेलेग एंग्लो सेकेंड एंग्लो माइसोर वार हल ताते आको की हल अपना ताते अपना टीपू सुल्तान আহিল बिकज हैदर अली ताते वाज किल्ड हैदर अली ताते ই হল एक्सपायर কৰিলে सो ताते आको কোন আহিল আৰু टीपू सुल्तान আহিছিল सब लिखा আছে ताते लिखा हुआ है देखिए उसमें लिखा हुआ है टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई हुआ था टीपू सुल्तान उसको हरा दिया इसलिए उसको लायन ऑफ माइसोर बोला जाता है सो दुटा एंग्लो माइसोर वार ऑलरेडी हो गल যেটো আমার লাস্ট ক্লাসৰ নোটত লিখা আছে এতিয়া আজি বাৰু হ'ব আমাৰ থার্ড এংলো মাইসোর ওয়ার কেতিয়া হৈছিল थर्ड एंग्लो माइसोर वार डेट की आसिल 1789 टू 1792 थर्ड एंग्लो माइसोर वार दिस वाज द थर्ड एंग्लो माइसोर वार क्लियर हो गल याते कार लगती हल याते की हल याते যদি আপোনাক
द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश वर्सेस, इस साइड कौन था? टीपू सुल्तान। रिजल्ट की होल, result hol যে টিপু সুলতান ওয়াজ ক্যাপচার্ড, টিপু সুলতানক ক্যাপচার করিলে, टीपू सुल्तान वॉज कैप्चर्ड, ठीक है, टीपू सुल्तान को पकड़ लिया था, मतलब बेसिकली टीपू सुल्तान हार गया था। टीपू सुल्तान हारने के बाद एक ट्रीटी साइन हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुआ था। क्या ट्रीटी हुआ था? देखिए, टीपू सुल्तान এই মাইসোৰৰ ৰজা আছিল টিপু সুলতান। থাৰ্ড এংলো মাইসোৰ ওৱাৰ হ'ল, টিপু সুলতান ক্যাপচাৰ হ'ল। টিপু সুলতানক ক্যাপচাৰ কৰাৰ যিটো প্লেচ আছে, যি জগা, যি প্লেচত বা যি জায়গাত এই যুদ্ধটো হৈছিল আৰু যি জায়গাত টিপু সুলতানক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল, এই জায়গাৰ নাম আছিল শ্ৰীৰংগাপট্টনম। ये जगह का नाम है श्रीरंगापट्टनम। এই কারণে ট্রিটির নাম হল ট্রিটি অফ শ্রী रंगापट्टनम। সেটা ওর এক্সামত বাৰু বহুতবাৰ এটা আহিছে যে when was the treaty of শ্ৰীৰংগাপট্টনম was signed? treaty of শ্ৰীৰংগাপট্টনম কেতিয়া সাইন হৈছিল? আপুনি অবভিয়াসলি আপোনাৰ ডেট কি হ'ব? 1792। 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। श्रीरंगापट्टनम क्या है? श्रीरंगापट्टनम आपका मैसूर का कैपिटल था। श्रीरंगापट्टनम मैसूर जो आपका डायनेस्टी था, मैसूर जो किंगडम था, এই রাজত্বর ক্যাপিটাল আছিল, রাজধানী আছিল শ্ৰীৰংগাপট্টনম। ক্লিয়ার হল? হৈ গল? ইয়াৰ রেজাল্ট কি হল? এই ট্রিটি সাইন কৰাৰ পিছত রেজাল্ট কি হল? রেজাল্ট হল যে মাইসোৰৰ যিমানখিনি জায়গা মাইসোৰৰ কবজাত আছিল, কন্ট্রোলত আছিল, সো 50% অফ মাইসোৰ, 50% অফ মাইসোৰ ওয়াজ ক্যাপচার্ড। ব্রিটিশে তেতিয়া কিন্তু 100% লোৱা নাছিল মাইসোৰ কিংডম বা মাইসোৰ ৰাজত্বৰ 50% কিন্তু অলরেডি ব্রিটিশে লৈ লৈছিল आफ्टर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको देख देख के ऐसे मत लिखिएगा, इसको सुनिए और अपने भाषा में लिखिए, बोडो में लिखिए, एसएमएस में लिखिए, हिंदी में लिखिए, तब वो आपको एक बार में दिमाग में रहेगा। मेरे तो देख देख के आप ऐसे आर्टिस्ट जैसा बनाएंगे तो फायदा नहीं है, वो नेचुरल सीनरी बन के रह जाएगा। क्लियर? এই যে গোটেইখিনি বস্তু হল, এইটো বাদ দিয়ক, 1860 বহুত বৰ পিছৰ কথা বাৰু। এই যে মাজত যে থাৰ্ড এংলো মাইসোৰ ওৱাৰ হল, এতিয়া কোশ্চেন আহে বাৰু, যেতিয়া থাৰ্ড এংলো মাইসোৰ ওৱাৰ হৈছিল, এই সময়ত গভৰ্ণৰ জেনারেল কোন আছিল? कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस के टाइम में हो रहा था सब ये। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑफ द गवर्नर जनरल हो गल। तो 1792 लेके আমি আহি গলো, 1792 लेके আমি আহি গৈছো। এতিয়া আমি কি কৰিম? এতিয়া আমি 1793 যাব পাৰো। नेक्स्ट स्लाइड ऑफ 1793। अब आते हैं 1793, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 1793 ইয়াতে মাজতে 1792 হৈ গল। ওকে, এতিয়া আহিব আপোনাৰ পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেম। 1793 এই সময়তে গভর্নর জেনারেল কোন আছিল? গভর্নর জেনারেল আছিল লর্ড কর্নওয়ালিস। সো লর্ড কর্নওয়ালিসে কি করিলে? লর্ড কর্নওয়ালিস ইন্ট্রোডিউস করিলে। কি ইন্ট্রোডিউস করিলে? PSS মানে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করিলে। এই পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেম কি আছিল? এটা নতুন ট্যাক্সেশন, ট্যাক্স লোৱাৰ এটা সিস্টেম আছে। टैक्स लोअर এটা সিস্টেম আছিল পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেম, যেটো বাৰু জমিনদারি সিস্টেম বুলি কোৱা হয়। এটো কিন্তু জমিনদারি সিস্টেম বুলিও কোৱা হয়, অলসো নোন এজ জমিনদারি সিস্টেম, অলসো নোন এজ জমিনদারি সিস্টেম।
ঠিক আছে, কি হৈছিল বেসিক্যালি চাব, এই সময় অহালৈকে কৰ্ণৱালিছ যেতিয়া এংলো মাইচুৰ ৱাৰ হৈ গ'লেই হ'ল, তো টেক্সেশ্যন তো টেক্সটো ল'বই লাগিব, আদাৰৱাইজ তেখেতে ৰাজত্ব কেনেকৈ কৰিব, তো বহুত বেছি হাই টেক্স লোৱা হৈছিল। বাট তেখেতে এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল। কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল? বিকজ এটা লেংগুৱেজ গেপ এটা আছে। কৰ্ণৱালিছৰ মানুহ যেতিয়া টেক্স লোৱাৰ কাৰণে কৃষক ফাৰ্মাৰৰ তাতে যায় বা আমাৰ নৰ্মেল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনৰ তাতে যায়, তেখেতসকলে কথাখিনি বুজাবই নোৱাৰে যে কি হয় কি নহয়। এটা লেংগুৱেজ এটা বেৰিয়াৰ এটা আছিল। ইয়াৰ ওপৰত ইংৰেজৰ লগত সদায় এটা মানে কনফ্লিক্ট এটা আছিল। এইকাৰণে ভালকে বহুত স্মুথলি পইচাখিনি কিন্তু আদায় কৰিব পৰা নাছিল। তো তেখেতসকলক পইচা লাগে চলাবৰ বাবে ডিচিশ্যন লৈছে। আৰু এইফালে আৰু এটা বস্তু হৈছিল, এই যে জমিনদাৰ আৰু ৰজাকেইটা আছিল, এইকেইটাতো অলৰেডি মানে তেখেতৰ প্ৰভিন্সখিনি, তেখেতৰ যিমানখিনি ৰাজত্ব আছিল ऑलरेडी ब्रिटिशत हुमाई गई। सो ब्रिटिश को वो जगह चाहिए था जो ऑलरेडी मिल गया, लेकिन राजा लोग को क्या किया था, राजा लोग को पेंशन दिया जाता था, थोड़ा थोड़ा उन लोग को पेंशन दिया जाता था। तो कॉर्नवालिस से भाविले যে রাজাকেইটা এনে বহাই বহাই পেনশন দিয়ে কি লাভ, কিবা যদি কাম যদি নকৰে পেনশন দিয়ে কি লাভ। এই কাৰণে নতুন এটা জমিনদাৰী সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হল। মানে কি, যিসকলে জমিনদার আছে, যিসকলে ৰজা আছে, তেখেতসকলে পইচা কালেক্ট কৰিব। তেখেতসকলে নৰ্মাল ফাৰ্মাৰ কক, কৃষক কক, নর্মাল इंडियन सिटीजनों পৰা তেখেতসকলে পয়সা আদায় কৰি कॉर्नवालिस माने ब्रिटिश गवर्नमेंट দিব। और तो जमींदारी सिस्टम इसको क्यों बोला गया था, ये पैसा जाएगा ब्रिटिश के पास, लेकिन पैसा कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था जमींदार लोगों को। क्यों? फ्री में पेंशन नहीं देना, काम करो उसके बाद पेंशन लो। बात क्लियर है? এতিয়া ইয়াতে বাৰু কি হল, টোটাল যেটো পয়সা কালেকশন হোৱা আছে, টোটাল যেটো টেক্সৰ জৰিয়তে যিমানখিনি পইচা কালেকশন হয় আৰু এটো 11 পাৰ্ট, 11 পাৰ্টত ডিভাইড কৰা আছে। টোটাল 11টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা আছিল। এতিয়া এই 11 পাৰ্ট মানে ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজ, যে এই যিমানখিনি পইচা আহিব এই পাৰ্টখিনি যাব কিবা रोड ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বাবে, এইটো যাব কিবা বেলেগৰ বাবে, এইটো যাব কিবা বেলেগৰ বাবে। এইটো কৰোতে কৰোতে দেখা গ'ল ফাইনালি দেখা গ'ল যে आउट ऑफ 10 पार्ट, सॉरी आउट ऑफ 11 पार्ट, ये 11 पार्ट में से 10 पार्ट का अथॉरिटी रहेगा ब्रिटिश के पास, और सिर्फ एक पार्ट ही मिलेगा जमींदार लोगों को। तो जमींदारे पैसा कालेक्ट करिব ঠিকই আছে বাৰু, বাট বেলেগ বেলেগ ডিপার্টমেন্ট দেখাই পিনে ব্রিটিশে বাৰু 11টা পৰা 10টা পাৰ নিজে লৈছে বাৰু। ठीक है, अगर 11,000 मिला होगा 10,000 वो लोग ले लिए, 1,000 जमींदार को दिया है, रखो। ठीक है, तो ये आपका एक पार्ट जमींदार को दिया जाता था। अभी आपका क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो मैं रिसेंटली यूट्यूब में भी क्लास किया, उसमें भी ये क्वेश्चन मैं देखा हूं 3-4 जगह आया है। क्वेश्चन आपका ये था कि आपका ये जो पीएसएस है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कत इम्पोज करा হৈছিল। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम imposed on কত কত ইম্পোজ করা হয়েছিল, বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা আর বারাণসী। এই চারিটা প্রভিন্সত বা চারিটা রিজনত এই পার্মানেন্ট सेटलमेंट सिस्टम इम्पोज करा হৈছিল, এই टैक्सेशन सिस्टम तो लागू करा হৈছিল। दोस्तों क्लियर हो आपका? मैं हाल ही में जो यूट्यूब का एक क्लास में मैं कर रहा था, ये क्वेश्चन उसमें ये था कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से, अंडर फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस, बताइए कौन सा जगह में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज नॉट इम्पोज्ड। তাতে অপশন আছিল এটা পাঞ্জাব বুলি অপশন আছিল। সো পাঞ্জাবত কিন্তু ইম্পোজ করা হওয়া নাই, এই পার্টিকুলার চারিটা ঠাইত অকল ইম্পোজ করা হৈছিল। बात समझे कि नहीं? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। এতিয়া চাব, वारेन हेस्टिंगर कहानी हेक, लॉर्ड कॉर्नवालिसर कहानी हेक। वारेन हेस्टिंग गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी ब्रिटेन में उनको बुलाया गया, दूसरा कोई पोस्ट देके। अभी इसके बाद कौन आया था? कॉर्नवालिस के बाद कौन आया था? हाँ, बेंटिक का भी बच्चा है,
अभी आएगा लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर? लॉर्ड वेलेस्ली इथे আহিব। इथे वेलेस्ली बहुत खतरनाक एजन मानुह আছে और তেখেতৰ মানে ব্ৰিটেন आर्मी ट्रुप ब्रिटिशर जो डिफेन्स सिस्टम आसिल ताते वेलेस्ली बेया एटा माने रेपुटेशन आसिल, माने सब उसको बहुत ज्यादा मानते थे। कारण क्या पता है? वेलेस्ली का रेपुटेशन उनके ब्रिटेन पावर में, ब्रिटिश के पावर में वेलेस्ली का रेपुटेशन बहुत अच्छा था और बहुत उनके बात को माना जाता था। कारण क्या है? कारण यह है बिकॉज नेपोलियन द ग्रेट, नेपोलियन को जो कोई हरा नहीं सकता था उसको एक बार वेलेस्ली हराया था। तो नेपोलियन को हराने के बाद वेलेस्ली का इज्जत एकदम पूरा टॉप पे, समझे कि नहीं? तो वेलेस्ली बोले मतलब उसको मानना पड़ेगा बिकॉज वो एक जमाने में नेपोलियन को हराया था। लिख के रख सकते, ही डिफीटेड नेपोलियन वंस। बेलेग युद्धवार माने हाँ हाँ নেপোলিয়নক এবাৰ হাৰাইছিল আৰু ক্লিয়াৰ। এতিয়া वेलेस्ली অলপ মানে মানে ই আছিল, মানে অলপ এনাৰ্কি টাইপ আৰু মানে বেছি কথা কথা নাই আৰু এই মাৰি দিম আৰু এনেকে টাইপৰ আছিল। সো वेलेस्ली যেতিয়া ইণ্ডিয়াত আহিলে, আপোনালোকে লাষ্ট ক্লাছত পাইছিল ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ কি আছিল? বেংগল গেজেট। বেংগল গেজেট was the first newspaper in India. এডিটৰ কোন আছিল? জেমছ হিকি was the editor. वेलेस्ली আহাৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়াত আহি পালে আৰু তেতিয়া পালে যে নিউজ পেপাৰ কেইটা বহুত বেছি কথা কয় আৰু ব্রিটেন মানে ব্রিটিশৰ নিউজ পেপাৰ তথাপি এই ব্রিটেন इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा ये कर रहा है মানে বেশি হসা কথা আৰু আজিৰ দিনত যেটো হয় আৰু जो चैनल ज्यादा बक करेगा वो चैनल को बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो खरीदा जाएगा। और बाकी जितना भी न्यूज चैनल है सिर्फ गुणगान गाता रहेगा सरकार का। ये नॉर्मल हर एक डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा कि प्रेस हैंडीकैप्ड है। प्रेस न्यूज हैंडीकैप्ड, वो कुछ सरकार के अगेंस्ट बोलेगा ही नहीं, जीरो। सो এই वेलेस्ली जो इंडिया আহিলে ही पाले जा रहे बाप रे बाप प्रेस के देखिए बहुत बेसी उछल रहा है, इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ई लोया हिल 1798 लोया हिल वेलेस्ली आहा लगे लगे 1798 लोया हिल ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আমি पिछों शाम बारो आगे चल के हम लोग देखेंगे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक बार दो बार नहीं 4 बार आया है, 4 बार टोटल 4 बार इसको अलग अलग टाइम में लाया गया है। फर्स्ट आया था 1798, कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। क्या लाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्यों लाया था? बैन ऑन प्रेस, झमेला है ये सब न्यूज़पेपर ये सब प्रेस बंद कीजिए, बहुत हुआ, नहीं चाहिए। कुछ कोई बोलेगा नहीं मतलब सब ठीक है, बोलेगा तब तो दिक्कत है, बोलना ही बंद कर देंगे। सो बैन और रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस, बैन बुलियो দিব পারে और रेस्ट्रिक्शन बुलियो দিব পারে। रेस्ट्रिक्शन প্রেস বন্ধ করে দিলে, ঠিক আছে। এতিয়া वेलेस्ली যেহেতু অবভিয়াসলি এজন মানুহ যি মানুহজনে বাৰু नेपोलियन নিচিনা এজন ওয়ারিয়ৰক হাৰাইছিল, निश्चय काबिलियत थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वेलेस्ली जब इंडिया में आया ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया जो उनसे पहले कोई चीज को दिमाग लगाया नहीं था। वेलेस्ली क्या देखा? वेलेस्ली ये देखा कि ब्रिटिश अकल इंडिया कब्जा करिब बा इंडिया कैप्चर करिब हेतु केते इंटेंशन नासिल। ब्रिटेनर इंटेंशन आसिल कंप्लीट वर्ल्ड को उसको रूल करना है। और इसीलिए आप देखिएगा अफ्रीका में भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, अलग अलग जगह में पूरा वर्ल्ड के अलग अलग जगह में ब्रिटेन अपना कॉलोनी बनाया था। उसको मारा, मारकाट हुआ, लड़ाई हुआ, हराया, उसके बाद जगह ले लिया। उसमें से एक था इंडिया। ठीक है, अभी एक चीज देखिए, तो वेलेस्ली देखा कि मेरे इंडिया में लड़ाई मारपीट करने के लिए, इंडिया को रूल करने के लिए मैं अभी गवर्नर जनरल हूं और मुझे ऐसा इतना नंबर ऑफ सोल्जर मुझे भेजा गया है। अगर लेकिन मैं मेरे नंबर ऑफ सोल्जर के साथ इंडिया का जो अलग अलग राजा जो अभी सप्रेस है, हम लोग के प्रेशर के चलते दबाव में है,
बुरा हो गया है, यूनिटी नहीं है। लेकिन अगर उन लोग का मैं अगर सोल्जर अगर काउंट करूं तो हम लोग से बहुत ज्यादा है। ব্রিটেন অলরেডি ইন্ডিয়াত রুল করে আছিল বাৰু, বাট নাম্বাৰ অফ সোলজাৰ, নাম্বাৰ অফ মেন পাৱাৰ যদি দেখা যায়, আমাৰ ব্ৰিটিছৰ পৰা ইন্ডিয়ান গোটেইকেইটা ৰজা যদি একেলগে কেতিয়াবা যদি মানে হয় ना, ये तो कभी होने से रहा, यूनिटी था ही नहीं, इसलिए तो इंडिया हारा था। अगर यूनिटी हुआ करता तो उन लोग अगर कभी अगर एक साथ हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो भागना पड़ेगा। तो इन लोग को समझने देने से पहले हम लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा। तो प्रॉब्लेम तो ভাল এটা বস্তু চাইছে। আৰু এটা প্ৰব্লেম আছিল যে ব্ৰিটেন পাৱাৰ, এটা একটা রিজন যে তাতে ই রিয়েলাইজ করছে যে ইয়াতে ইন্ডিয়ান সোলজার বহুত বেশি কম্পেয়ার টু ব্রিটিশ সোলজার, বাট ইন্ডিয়ান রজাৰ মাজত ইউনিটি না থাকার কারণে আমার লগত মানে একেলগে টুগেদার যুদ্ধ কৰিব কেতিয়াও নাহে। আৰু एक बात था। दूसरा बात ये था, उधर से ब्रिटिश सोल्जर को भेज तो दिया, खाना कौन खिलाएगा? ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। पैसा कहां से मिलेगा? टैक्सेशन से मिलेगा। टैक्स देगा कौन? गरीब कृषि जो लोग फार्मर जो वो देगा। वो लोग कितना ही टैक्स मुझे दे पाएगा? अभी कोई दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है, कोई फांसी ले रहा है, कोई फांसी से मर जा रहा है, पैसा 10 रुपया मांग रहा है, 2 रुपया वो दे ही नहीं पाएगा। पूरा देश में अभी हाहाकार है। तो पैसा देगा, वो पैसा से मैं अपने सोल्जर को खिलाऊंगा, वो पैसा लेने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ उपाय निकाला जाए कि मेरा सोल्जर को इंडियन लोग ही खिलाएगा, इंडियन का राजा ही खिलाएगा, तब तो मेरे वाह वाह सिचुएशन एकदम है ना, विन विन सिचुएशन। तब वो एक चीज निकाला जिसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्वेश्चन एटू भावे एग्जामत एबार दुबार নহয়, 1000 बार अहा क्वेश्चन जे हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस। आंसर हो लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर? इतना भी सब्सिडियरी अलायंस आसिल की वस्तु अलग साबो। सपोज मान लेते हैं ये है ए, ये जगह जो है ए बोल के एक राजा है, उनके कंट्रोल में ये जगह है। ये एक बी है, ये बी बोल के एक जगह है। तो बी बोल एक जगह है जिसका राजा बी है। अभी मैं लास्ट क्लास में, उसके आगे वाला क्लास में बोला था कि हमेशा देखिएगा, हिस्ट्री बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इतिहास बोलता है, काजिया हदाय नेबरिंग कंट्री মাজত হয়। ইন্ডিয়াৰ লগত পাকিস্তান, ইন্ডিয়াৰ লগত বাংলাদেশ, ইন্ডিয়াৰ লগত বিকজ নেবৰিং কাণ্ট্ৰি। ইন্ডিয়াৰ লগত ৰাছিয়া কেতিয়াও ইমান তুমুল ঝগড়া কেতিয়াও নহয়, इमान तुमुल काजिया केत्या ना। सो जब नेबरिंग इंडिया का यही हमेशा होता है कि नेबरिंग जो है उसके साथ हमेशा झगड़ा ये सब होता ही रहता था। अभी वो क्या बोला, एक नया पॉलिसी निकाला। लॉर्ड वेलेस्ली खुद गया, ये अपने आदमी को भेजा ए में, जाके बोलता है राजा साहब अपना की असुविधा से कौन। तो राजा कले ये असुविधा किंतु कॉमन एक असुविधा की सर देखिए ना, बी के साथ हम लोग का हमेशा झगड़ा लगा रहता है, और बी के साथ झगड़ा लगाने से क्या होता है, सोल्जर बहुत मारा जाता है, और बहुत सारे सोल्जर को उनको बॉर्डर में रखना पड़ता है। इसके चलते अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन देख नहीं पाते हैं, अंदर में क्या होने लगता है, पब्लिक में झमेला होता है, और इधर का बहुत सारा सोल्जर मारा भी जाता है। क्यों? बी कभी कभी अटैक कर देता है। तो ठीक है, तो आपका सोल्जर, बॉर्डर का सोल्जर लेके बहुत दिक्कत है आपका। हाँ, फिर से वेलेस्ली बी में गया, तो अपना क्यों असुविधा আছে, अरे बेलेग बेलेग किबा किबी असुविधा जी को कले कॉमन एक असुविधा की सब ठीक है साहब, लेकिन ए कभी कभी अटैक करता है और हम लोग का सोल्जर मारा जाता है, बॉर्डर में बहुत सारा सोल्जर है अंदर का। तो बोला ठीक है, एक काम करते हैं, ए को भी और बी को बोला है, ए को अलग से बी को अलग से बोला है। ए को बोला है तुम अपने सोल्जर को हटा दो, बॉर्डर से अपने सोल्जर को हटा दो। इंग्लिश बोला है कि मैं अपना सोल्जर रखूंगा, ये सब मेरा सोल्जर रहेगा। ठीक है, यार जी के सोल्जर आसिल, यार जी के सोल्जर आसिल निजर, एक सोल्जारक नालागे बारो उइड्र करक, इंग्रेजे निजर सोल्जर दिव। सिमिलरली बी का जो सोल्जर था उसको ही बोला आप लोग भी निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा सोल्जर आपको प्रोटेक्शन देगा। मैं हूं किस लिए, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। ए खुश, बी खुश। এতিয়া ব্রিটিশ কেতিয়াও লড়াই হব নেকি? কেতিয়াও লড়াই নহয়। हो गल, इतना खाना कोने खुआब, अरे आपको प्रोटेक्शन आप क्यों रख लिए, मारामारियों बंद और पैसा जो तो जाए खुआ दावा पाबे, एटो गोल। और ये बोल रहे बाप रे बाप हम लोग बच गए, पैसा गोल।
এই বস্তুৰ নিজৰ মাজত ইউনিট থাকিলে এটা কেতিয়া কিন্তু সম্ভव নাছিল। तो अपने में कभी भी यूनिटी था नहीं और उसका फायदा उठा वेलेसली। वो लोग अपना ही बैठे और दोनों बाद में तंबाकू खाते देख सकते बैठ के, समझे कि नहीं, मारा मारी बंद हो गया। ये था आपका सब्सिडियरी अलायंस। एटो अपना आसिल बारू सब्सिडियरी अलायंसर कन्सेप्ट क्लियर। मारा मारी बंद हो गल और जो मेन এটা খরচা যেটা আছে সোলজারক খাওয়া দাওয়া খরচা এটাও বারু রাজা এতে টেক কেয়ার করা স্টার্ট করলে। কোশ্চেন এটা আহে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু অ্যাকসেপ্ট সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স? কোনে ফার্স্ট সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স অ্যাকসেপ্ট করেছিল? কোনে ফার্স্ট সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স অ্যাকসেপ্ট করেছিল? অ্যান্সার কি হবে? নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ। নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ তেখেতে ফার্স্ট এই সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স এগ্রিমেন্ট সাইন করেছিল। कारण কি কি হয়েছিল याद कीजिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश को दो पार्टी सपोर्ट करने आया था। एक था माराठा जो बाद में मैसूर के साथ हाथ मिला लिए, और एक कौन था? निजाम ऑफ हैदराबाद। कारण की निजाम ऑफ हैदराबाद हदाय मैसूर पर अलग माने डर डर के रहते थे कि टीपू सुल्तान हैदर अली बहुत खतरनाक है, कब छुरा घोप देगा दिक्कत है, इसके चलते हमेशा डर डर के रहते थे। तो ये डर के मारे निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ टीपू सुल्तान। क्यों? बिकॉज इ टीपू सुल्तानक सदाय भय पोৱা আছিল বাৰু, কেতিয়া আহি দিব আৰু অৱস্থা বেয়া কৰি। अफ्रेड ऑफ एक सेकेंड टीपू सुल्तान। सब्सिडियरी अलायंस केতিয়া इंट्रोड्यूस হৈছিল? 1798। सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर কোন বছৰত इंट्रोड्यूस কৰা হৈছিল? 1798। কোনে इंट्रोड्यूस কৰিছিল? লর্ড ওয়েলেসলি इंट्रोड्यूस কৰিছিল। ফার্স্ট কোনে অ্যাকসেপ্ট কৰিছিল? ফার্স্ট টু অ্যাকসেপ্ট सब्सिडियरी अलायंस निजाम ऑफ हैदराबाद। कारण की अफ्रेड ऑफ टीपू सुल्तान। कहानी क्लियर हो गया? बात आगे बढ़े। नेक्स्ट 1799 1798 सब्सिडियरी अलायंस होल। सब्सिडियरी अलायंस निजाम ऑफ हैदराबादे मानिले बाट मैसूर मानि लोৱা নাই। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम टीटी साइन হৈছিল, ইয়াক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল, আকৌ এৰি দিলে, শ্ৰীৰংগপट्टनम टीटी साइन হল, मैसूৰৰ 50% ক্যাপচাৰ হল। কেতিয়া? থাৰ্ড এংলো मैसूर ওয়ার। বাট टीपू सुल्तान আকৌ বেছি অলপ পাৱাৰফুল হৈ আছিল, এই কাৰণে 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हल। और এই যুদ্ধত কি হল? टीपू सुल्तान was killed। टीपू सुल्तान was killed in the battlefield। তেখেতক বেটেলফিল্ডক কি করা হল। और मैसूर कमप्लीट मैसूर was captured। कमप्लीट मैसूर कैप्चर कर लो। 1799 कमप्लीट मैसूर कैप्चर हो गई। समझी कि नहीं? अभी देश का सिचुएशन थोड़ा समझिए। 1799 आते आते देश का सिचुएशन थोड़ा समझिए। मुगल ऑलरेडी घुटना टेक दिए थे, है ना? नहीं, बैटल ऑफ बक्सर 1764 शाह आलमर लगत टीटी साइन हल। टीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हल। टीटी साइन हुआ माने शाह आलम सारेंडार और मुगले और कोनो झमेला नकरे। नवाब ऑफ बेंगल কোন আছিল? আমার এই ব্যাটল অফ পলাশি সিরাজউদ্দৌলা খেলাই দিলে, আহি গল মির্জাফর আছিল বাৰু ইয়ার পাপেট, ব্রিটেনের পাপেট আছিল मिर्जाफर। तो ऑलरेडी नवाब ऑफ बेंगल कोनो रोले नहीं। नेक्स्ट था निजाम ऑफ हैदराबाद तो पहले से घुटने टेके हुए थे, इसलिए तो सब्सिडियरी अलायंस लिया था।
बीच बीच में झमेला करता था मैसूर, मैसूर भी चला गया, फोर्थ एंग्लो मैसूर हुआ। अभी कौन रह गया झमेला करने के लिए? कौन रह गया? माराठा रह गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ ओनली माराठा, अभी माराठा सिर्फ बाकी है। तो माराठा भी थोड़ा पावरफुल था, माराठा अलग पावरफुल আছিল। सो এই কারণে এটা রিয়েলাইজ করা হল যে মারাঠার লগত ফেস টু ফেস যদি ব্রিটিশ ভাবিলে আৰু যদি আমি ফেস টু ফেস মারাঠার লগত যদি লড়াই করার কারণে যাও আমি জিকিম, निश्चय के जिकिम, बिकॉज हमारा आर्म्स एम्युनिशन बहुत बेसी एडवांस्ड, बट हम लोग का भारी लॉस होगा। तो लॉस कौन लेगा? लॉस नहीं लेना है, इसलिए 1802 টিপিক্যাল ইন্ডিয়ান মেন্টালিটি, যেটার কারণে ইন্ডিয়ার বারে লাস্ট লেগে এই অবস্থা হল। 1802 কি হল? ব্যাটেল অফ পুনা। ব্যাটেল অফ পুনা, এই ব্যাটেল অফ পুনা কি আছিল? এই ব্যাটেল অফ পুনা কি আছিল? এই যে মারাঠা, এই যে মারাঠা আছিল, এই মারাঠার আবার বেলেগ বেলেগ কমিউনিটি আছে, হয় না? হয় না? আমার মাজত যেনেকে বঙালী মানুহৰ মাজত বহুত বেলেগ বেলেগ আকৌ কমিউনিটি ৱাইজ যেনেকে ডিভাইড কৰা থাকে, सो मराठा এনেকে বেলেগ বেলেগ कम्युनिटी है। मराठा सबे मराठा, बट बेलेग बेलेग उन लोग का रहने सहने का चाल, कोई इस जगह पे रहता है, कोई उस जगह पे रहता है, ऐसा अलग अलग उनमें थोड़ा डिफरेंसेस था। एक मराठा का ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम है होलकर, तो नाम है सिर्फ होलकर। होलकर कोर पर बिलोंग करा आसिल इंदौर। और এটা মারাঠার গ্রুপ আছিল গায়কওয়াড়। গায়কওয়াড় কোট আছিল? জি ফর গায়কওয়াড়, জি ফর গুজরাট, बड़ौदा, गुजरात बड़ौदा की। नेक्स्ट सिंधिया, सिंधिया ग्वालियर। এই হল মারাঠার বেলেগ বেলেগ গ্রুপ আছিল, বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ গ্রুপ আছিল। আৰু ইন্দোৰত আছিল হোলকাৰ, গুজৰাটত আছিল গায়কৱাড, আৰু সিন্ধিয়াত গোৱালিয়ৰত আছিল সিন্ধিয়া। এতিয়া এই মাৰাঠাৰ বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপৰ মাজত ইমান ভাল ইউনিটি নাছিল, আৰু এইটোৰ ফায়দা উঠালে ব্ৰিটিছ। ব্ৰিটিছে কিবা কিবি পলিটিক্স কৰি কিবা কিবি কথা আৰু লগালে, আৰু লগোৱাৰ পিছত তেখেতসকলৰ মাজত যুদ্ধ হ'ল, তিনিজনৰ মাজত যুদ্ধ। ब्रिटेन ब्रिटेन नहीं, पावर ऑफ नहीं, ब्रिटेन मैंने रूल तो नहीं, ये खाली वो आग लगा के हट गया, अभी तुम लोग करते रहो। तो आपस में पूरा मारामारी हुआ, मारकाट हुआ, सबका सोल्जर का हानि हुआ, बहुत सोल्जर मर गए, उन लोग का आर्म्स एम्युनिशन बहुत खराब हुए। ऑटोमेटिकली युद्ध हो, युद्ध हुआ विषय युद्ध को रिजल्ट ना है, मारामारी चल ही रहा है। घर का जैसे वो पड़ोसी के साथ जो झगड़ा होता है ना, सालों साल चलता रहता है, इसका आम मेरे घर में क्यों आया, ये है वो लेके चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये लोग में आपस में चल रहा है बहुत दिन तक चला। यार पिछोत ब्रिटेन ने गुजारे हम ऐसा किया होगा उन्हें, नहीं ये सब झगड़ा वगैरह नहीं करना है, हम इसको रुकाएंगे। तो बाद में ब्रिटिश आया, रुका दिया, ब्रिटिश अच्छा हो गया। इतना ब्रिटेन को लगे लगे ब्रिटिशे और এটা প্রপোজাল রাখিল। প্রপোজাল কি যে দেখিয়ে আপনাদের সবে মারাঠা, বেলেগ বেলেগ গ্রুপ নিশ্চয় কিবা সবে মারাঠা। সো আপোনালোকৰ যদি এজন পেশোয়া যদি থাকে, পেশোয়া মানে এজন হেড যদি থাকে, তেতিয়া কিন্তু তেখেতৰ আন্ডাৰ যদি গোটেইখিনি থাকে এটা ইউনিটি থাকিব। बट ये आस्तीन में छुपा हुआ सांप, उसका मेंटलिटी दूसरा कुछ था। जिस आदमी को बनाया गया था, जो आदमी को पेशवा बनाया गया था, उनका नाम था पेशवा हीरो बालाजी बाजी राव सेकेंड। पेशवा बालाजी बाजी राव सेकेंड তেখেতক পেশোয়া বুলি ডিক্লেয়ার করা হল। হি ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড পেশোয়া। এই ব্যাটেল অফ পুনা হওয়ার পিছত তেখেতক পেশোয়া বুলি ডিক্লেয়ার করা হল। তেখেতক পেশোয়া বুলি যেতিয়া ডিক্লেয়ার করা হল, আকৌ কাজিয়া, ये कैसे पेशवा हो गया, मैं ज्यादा ये हो, वो बोलता मैं ज्यादा ये हो। अभी तब तक ऑलरेडी बैटल ऑफ पुना हो चुका था, तीनों अलग अलग मराठा ग्रुप का ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान हो गया था, ऊपर में इन लोग का यूनिटी भी है नहीं। तो क्या किया ब्रिटेन, बोलता अरे तुम लोग फिर से झगड़ा करो, रुको इसमें मैं लड़ाई करूंगा तुम लोग के साथ। ऑलरेडी अवस्था बेया, एते आहिले ब्रिटेन लड़ाई करा 1803 to 1805।
বেটেল অফ পুনা হ'ল 1802, এতিয়া আহিল 1803 to 1805, 1803 to 1805, ঠিক আছে। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो माने इंग्लिश आ गया अभी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। बहुत ज्यादा तुम लोग जिम्बाब्वे के साथ खेल लिए, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलो, हरा देंगे, समझे कि नहीं। तो लोग वो जो होता है ना पाकिस्तान का, जैसे अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होता है, उन लोग का मीडिया ही क्रिटिसाइज करता है कि बाबर आजम का इतना अच्छा एवरेज हुआ बिकॉज ज्यादातर सिर्फ जिम्बाब्वे को घर में बुलाता है, हराता है। तो जिम्बाब्वे के साथ बहुत खेल लिए, अभी ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलिए, हार गए, खत्म। ऑलरेडी देखा था अवस्था बेया, तार ऊपर एंग्लो माने ब्रिटेन आई गो कोट आरो बैडली डिफीटेड मराठा was defeated convincingly, कॉन्विंसिंगली मतलब हंसते हंसते हार गए, समझे कि नहीं। किंतु এটা प्रॉब्लम কি আছিল, प्रॉब्लमটো এই যে আকৌ সেম ব্ৰিটেনৰ হাতত বহুত বেছি মানুহ নাছিল, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेसी नासिल। सो ब्रिटेन ने देते मोटा-मोटी इन लोगों को हरा ही दिए, ये लोग कभी सिर ऊपर करके उठ नहीं पाएगा। लेकिन इसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मुझे अगर रूल करना है, तो मैं आदमी कहां से लाऊंगा। सो এই কারণে কমপ্লিট মারাঠা ক্যাপচার করা নাছিল, কমপ্লিট মারাঠা কিন্তু ইচ্ছাকে কোনো তাতে কোনো ই নাছিল যে না চাহে তো કરી सकता था, लेकिन बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशनर प्रॉब्लम হব পারে, এই কারণে কমপ্লিট মারাঠা এই সময়ত মানে সেকেন্ড এংলো মারাঠা ওয়ার যেতিয়া হল, এই সময়ত কমপ্লিট মারাঠা ওয়াজ নট ক্যাপচার্ড। क्लियर हो गल, बढ़िया। এতিয়া এটা क्वेश्चन হল, ऐसा क्वेश्चन लोग आंसर नहीं दियो, हाँ आप लोग थोड़ा सोच के मुझे बताइए, कल भी तो क्लास है। इंडिया का इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1947। थोड़ा खबर लेके देखिएगा, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के देखिए या कहीं से खबर लेके या गूगल में सर्च कीजिए। ब्रिटेन का जो कॉलोनी था सिर्फ इंडिया में नहीं था, ब्रिटेन कॉलोनी अपना साउथ आफ्रिकात आसिल, ताते बेलेग बेलेग बहुत कांट्रीज आसिल। ब्रिटेन तेते सुप्रीम पावर आसिल। 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस होल और यार ओसरा ओसरी 1948 के बाद 1951 अलग अलग जितना जगह में कॉलोनी था, सब जगह का कॉलोनी वो लोग इंडिपेंडेंट कर दिया। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, ऐसा जितना जगह पे कॉलोनी था सब इंडिपेंडेंस हो गया। 1947 से लेके 1951 के बीच में 4 साल के बीच में हर एक जगह कॉलोनी रिलीज कर दिया गया है। इंडिया में मैं मान लिया, इसको कंट्रोवर्सी नहीं करना है, मैं जस्ट बोल रहा हूं, ठीक है। मैं मान लिया इंडिया में फ्रीडम फाइटर का महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग हम लोग के देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कैसा कोइंसिडेंस है कि एक ही 2-3 साल के बीच में सब जगह इंडिपेंडेंट हो गया। सब जगह पे तो महात्मा गांधी था नहीं, नेताजी बोस था नहीं, तो कैसे हो गया, थोड़ा बताइएगा तो, ठीक है। आइए वो सब तो हम होता रहेगा। नेक्स्ट चीज, ये क्वेश्चन देखे रखते हैं। नेक्स्ट चीज, फर्स्ट सिपॉय का म्यूटनी कब हुआ था? फर्स्ट सिपॉय म्यूटनी केতিয়া হৈছিল? फर्स्ट सिपॉय म्यूटनी 1857, भूल। फर्स्ट सिपॉय म्यूटनी 1857 हुआ नाছিল। ऑब्वियसली আমি सिपॉय म्यूटनी बोली যদি কোয়া হয়, क्वेश्चन যদি आए যে फर्स्ट व्हेन वाज द सिपॉय म्यूटनी हेल्ड, तो कब हुआ था? आंसर 1857 होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री का बुक आराम से देखेंगे तो फर्स्ट सिपॉय म्यूटनी माने কি, যিসকলে ইন্ডিয়ান সোলজার আছিল তেখেতসকলে মিউটিনি, তেখেতসকলে রিভোল্ট কৰিছিল। ফার্স্ট হৈছিল বাৰু 1806 में पहला सिपॉय का म्यूटिनी हुआ था। फर्स्ट म्यूटिनी बाय सिपॉय, इंडियन सिपॉय जे असेल, इंडियन जे सोल्जर असेल तेखেতসকলৰ ফার্স্ট রিভোল্ট, ফার্স্ট অবজেকশন, ফার্স্ট এটা রিভোল্ট বা মিউটিনি কেতিয়া হল? 1806 হল। কাৰণ কি, তেতিয়া বাৰু এজন জেনারেল আছিল, ব্রিটিশের এজন জেনারেল, ব্রিটিশের এজন জেনারেল আছিল, তেখেতৰ নাম আছিল জর্জ বার্লো।
জর্জ ব্ৰিটিছৰ এজন জেনেৰেল আছিল, তেখেতৰ নাম আছিল জৰ্জ বাৰ্লো। ক'ত তেখেতৰ পোষ্টিং ক'ত আছিল ইণ্ডিয়াত? তেখেতৰ পোষ্টিং আছিল ভেলোৰ। ভেলোৰ তেখেতৰ পোষ্টিং আছিল। ক্লিয়াৰ? এতিয়া তেখেতৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মিউটিনি হ'ল। কাৰণ কি? তেখেতে এটা ড্ৰেছ কোড ওলালে। তেখেতে কি ওলালে? ड्रेस कोड। ड्रेस कोड मतलब इंडियन सोल्जर को ये ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। ड्रेस कोड में कंडीशन क्या था? ड्रेस कोड में कंडीशन था যে হিন্দু সোলজার কোনো ভগবানক তিলক লগাব নোৱাৰে। নো তিলক, মই তিলক বুলি অকল লিখো হা। বাই হিন্দু सोल्जर, কোনো হিন্দু সোলজারে तिलक विलक ये सब नहीं लगा पाएगा। और कोनो मुस्लिम सोल्जरे दाढ़ी रखिब नोरे। इसमें देखिए लोग का कैसा मेंटेलिटी था, नो बियर्ड फॉर मुस्लिम सोल्जर। तो वो जानता था कि ये आस्था का बात है, कोई भी हिंदू कोई भी भगवान को मानता होगा, तिलक विलक लगा, हम लोग भी करते हैं ना, ड्यूटी में जाते हैं, कोई भगवान को पूछ के कोई देते। मुस्लिम का होगा दाढ़ी होना नॉर्मल है। बोला है कि जो इसको तिलक नहीं लगाना है, इसको आपको दाढ़ी नहीं रखना है, करो ड्यूटी में। तब मारामारी लग गया, पूरा मारामारी लग के इसको भी मारने पे उतर आया सब। তাৰপিছত ব্ৰিটেন ক্ৰাউনে খবৰ পালে এই ইয়াক পঠালো তাতে বস্তুখিনি অলপ কন্ট্ৰোল কৰাৰ বাবে, ই যায় তাতে আকৌ তিলক আৰু দাড়ি খেলা খেলি আছে। फिर से उसको ब्रिटेन में बुला लिया। জর্জ বার্লোৰ কাৰণে এই ঝামেলা হ'ল। যেতিয়া ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে বস্তুখিনি গম পালে, তাতে বস্তুখিনি যাতে মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে, মেনেজ কৰাৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছিল। ই উল্টা আৰু এই তিলক দাড়ি এইবিলাক কাৰণে ঝামেলা লগাইছে। ইয়াক আৰু ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিলে, रिटर्न टू ब्रिटेन। आइए, अब बहुत खेल लिए, अभी ब्रिटेन में आइए। हाँ ठीक है, এইবিলাক হোৱাৰ পিছত ৰিটাৰ্ণ টু ব্ৰিটেন হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পিছত লৰ্ড ৱেলেছলি হৈ গ'ল, কৰ্ণৱালিছ হৈ গ'ল, হেষ্টিংছ হৈ গ'ল। নেক্সট আপোনাৰ যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আহিল, তেখেতৰ নাম আছিল লৰ্ড মিণ্টো। লৰ্ড মিণ্টো ওৱান। কি নাম আছিল? লৰ্ড মিণ্টো ওৱান। লৰ্ড মিণ্টো ওৱান। লৰ্ড মিণ্টো ওৱান। ক্লিয়াৰ? এতিয়া চবে বাৰু এইটো বিচাৰে নহয় যে মই কিবা এটা এনেকে বস্তু কৰোঁ যাতে মোৰ অলপ ব্ৰিটেইনত যাতে অলপ বাহ হয়, মানে বাহ কি কাম কি है। ये যেতিয়া मिंटो যেতিয়া इंडिया আহিলে, ये ऑलरेडी सिचुएशन पाया আছে। अरे मैं करूँ तो करूँ क्या, ऑलरेडी मेरे आसपास सब कैप्चर हो चुका है। ये भी घुटना टेक दिया, वो भी घुटना टेक दिया, मेरे अगल बगल कोई है ही नहीं जहां पे जाके मैं थोड़ा मारामारी करूँ, तो थोड़ा ऐसे सीना चौड़ के ऐसे दिखाओ, जगह ही नहीं है। तो ये भाविले একটা কাম কৰো, মই নর্থ ইন্ডিয়াত যাওঁ। নর্থ ইন্ডিয়া চাব, এতিয়ালৈকে নর্থ ইন্ডিয়া কোনো কথাই হোৱা নাই। নর্থ ইন্ডিয়াত কোনো ব্ৰিটেন কোনো ব্রিটিশ পাওয়ার তাতে যোৱাই নাই ক্যাপচার করার কারণে। সো ই ভাবিলে লেটস ক্যাপচার নর্থ ইন্ডিয়া, লেটস ক্যাপচার নর্থ ইন্ডিয়া। ইয়াৰ ফোকাস গ'ল নর্থ ইন্ডিয়াৰ ফালে। এই সময়ত শিখ মহাৰাজা रंजीत सिंह আছিল। এই সময়ত नॉर्थ इंडिया बेसिकली सिख जगह, पंजाब ये सब जगह जो है, वो जगह का आपका राजा कौन हुआ करता था? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह सिख राजा আছিল ना, सिख राजा আছিল 1809। কথা হল যে যুদ্ধ হব, মোটামুটি প্ৰিপাৰেচন হৈ গ'ল। ইয়াৰ আগত মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিংক এনেকে সুধিছিল যে क्या आप बैटल करेंगे कि आप सरेंडर करेंगे। মহাৰাজা रंजीत सिंह দুটাৰ ভিতৰত কোনো ৰাস্তা নলোৱাকে এনেকে কৈছিল যে हम लोग बैटल नहीं करेंगे, सरेंडर भी नहीं करेंगे। क्यों? ये आपका ही है प्रभु, ये आप ही रखिएगा, कुछ दिन हम लोग को रहने दीजिए।
তো তেতিয়া ই ভাবিলে আৰু ইয়াৰ যদি কেপচাৰ হোৱাটো বাৰু বহুত স্বাভাৱিক, কোনো প্ৰব্লেমেই নাই তাতে, বিকজ ইমানখিনি কেপচাৰ হৈ গ'ল, এইটোও কেপচাৰ হ'বই আৰু তাতে কোনো প্ৰব্লেম নাই। সো ই ডাইৰেক্ট কৈছে যে मैं सरेंडर नहीं करूंगा, आपका ही है, बाद में ले लीजिएगा। सो কোনো অলপ চলপ যি মাৰামাৰি হ'ল, বস্তুখিনি মিটমাট হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙে চালে যে না আৰু বেছি ঝামেলা নকৰে, এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব मैं पपेट राजा, और पपेट राजा हिसाब से थकीब, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, यहाँ से मैं टैक्स वैक्स लेके आपको देता रहूंगा, लेकिन राजा हिसाब से मुझे ही रहने दीजिए। इज एट अ ग्रेटफुलनेस, मुझे अपने जे मैंने ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, इसके चलते ये राजा रंजीत सिंह कोहिनूर का जो हीरा था, कोहिनूर डायमंड, ब्रिटिश पावर को दिए कि लीजिए हमसे ये छोटा सा भेंट, कोहिनूर डायमंड को लीजिए। इधर कोहिनूर डायमंड रंजीत सिंहर लगत केनेके आहिल হয়নে? सो আৰু এটা টিটি সাইন হল, কোহিনূর ডায়মন্ড দিলে আৰু লগত এটা টিটি সাইন কৰিলে। কি টিটি সাইন হল? টিটি অফ অমৃতসর। কোহিনূর ডায়মন্ড দিয়া হৈ গ'ল। কোহিনূৰ কিন্তু জাষ্ট নিজৰ ফালৰ পৰা উইলিংলি দিলে, কোনো জবৰদস্তি নাই, এই নিজৰ ফালৰ পৰা ব্ৰিটিছক দিছে। আৰু টিটি অফ অমৃতসৰ সাইন কৰা হ'ল। ক্লিয়াৰ? এতিয়া এই কোহিনূৰ ডায়মণ্ড ক'ৰ পৰা আহিল ইয়াৰ হাতত? नादिर शाह बोली एजन ईरान रजा आसिल। नादिर शाह नाम सुने, लिख के रख सकते हैं। नादिर शाह, नादिर शाह बोल के एक ईरान का राजा हुआ करता था। नादिर शाह, नादिर शाह बोल के एक ईरान का राजा हुआ करता था। नादिर शाह जो राजा हुआ करता था ईरान का, ইয়াৰ লগত এবাৰ এটা যুদ্ধ হৈছিল। কাৰ লগত? মোহাম্মদ শাহ। মোহাম্মদ শাহ বুলি এজন ৰজাৰ লগত যুদ্ধ হ'ল। ই আছিল বাৰু মোগল ৰজা। এই মোগলত মানে আফটাৰ ঔৰংজেব উইক যিকেইটা ৰজা আছিল তাৰ ভিতৰত এজন মোহাম্মদ শাহ বুলি এজন ৰজা আছিল। ইয়াৰ লগত নাদিৰ শাহৰ হ'ল যুদ্ধ। এই মোহাম্মদ শাহ তাতে যদি আপুনি অলপ হিষ্ট্ৰী চায়, এই যে তাতে मुगलों ताते देते आता थ्रोन असिल, थ्रोन राजगद्दी, उसका नाम हुआ करता था पिकॉक थ्रोन। यार की नाम असिल? पिकॉक थ्रोन। पिकॉक माने मयूर। मुगल के पास जो उन लोग का राजगद्दी हुआ करता था, जो उनका थ्रोन हुआ करता था, वो पिकॉक थ्रोन उसको बोलता था। देखने में मयूर इसे पिकॉक जैसा था, और उसमें आपका लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। এতিয়া যদি আপনি অলপ হিস্ট্রি ব্যাকত যায়, এটো এনেকে কোয়া হয়, ये कोहिनूर मुगलों ताते नासिल। कोहिनूर मुगल के पास पहले नहीं हुआ करता था। कोहिनूर आपका था लोधी डायनेस्टी के साथ। नाम सुने लोधी डायनेस्टी? लोधी, इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में बाबर का पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। अभी जस्ट बोल के रखते हो तो बाद में करेंगे, सुन के रखिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। बाबर उसको हराया और उससे वो पिकॉक थ्रोन लिया। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब वो पिकॉक थ्रोन को रख पाया। लेकिन ये मोहम्मद शाह आके इसका हालत खराब, ये हार उड़ के पिकॉक थ्रोन दे दिया नादिर शाह को। नादिर शाह के पास था ये कोहिनूर हीरा। अभी ये रंजीत सिंह नादिर शाह को दूसरे किसी बैटल में, दूसरे किसी के साथ उनका होने वाला था, नादिर शाह का दूसरा किसी के साथ बैटल हो रहा था अफगानिस्तान के साइड, ईरान अफगानिस्तान उस साइड में बैटल हो रहा था। उसमें ये रंजीत सिंह नादिर शाह को हेल्प किया एज अ फ्रेंड, या हेल्प কৰিছিল। सो नादिर शाह हैप्पी হৈ পিনে ইয়াক কোহিনূৰ হীৰা দিছিল। ৰঞ্জিত সিঙৰ লগত আছিল, বহুত বছৰ আছিল। এতিয়া যদি এই ট্ৰিটি অফ অমৃতসৰ সাইন হ'ল, ইয়াক মাৰে আৰু অৱস্থা আৰু এই মত মাৰি ইয়াক কোহিনূৰ হীৰা লিজে। সো কোহিনূৰ হীৰা পাছ হৈ গ'ল ব্ৰিটিছ, আজিলৈকে ব্ৰিটেইনত তাতে আছে। এই কাৰণে আপুনি যোৱা 2 বছৰত এইটোলৈ মোটামুটি 3-4টা মই এনেকৈ নিউজ পাইছো যে ইন্ডিয়ায় क्लेम करे जो कोहिनूर हीरा हम लोग का है, हम लोग को रिटर्न कीजिए। और ब्रिटेन ने की कहे जो अगर आप लोग से हम लोग चीन के लिए होते तो जरूर आपको देते, लेकिन ये तो हम लोग को गिफ्ट दिया गया है, प्यार से दिया गया है। प्यार से दिया हुआ चीज रिटर्न नहीं करते, है या नहीं? तो ये हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे। कोहिनूर आपका इंग्लैंड में ही है अभी, समझे बात? वेरी गुड। सो नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह हो गोल, पिकॉक थ्रोन गोल। यार पिछत ट्रिटी ऑफ ओके। यार पिछत आई गोल
1809 লৈকে ট্ৰিটি অফ অমৃতসৰ হ'ল, 1809 ট্ৰিটি অফ অমৃতসৰ হ'ল। 1813 চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 সাইন হ'ল। আহি হ'ল আপোনাৰ 1813। এই 1813 কি সাইন হ'ল? 1813 সাইন হ'ল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813। যদি আপুনি এনেকে চাই আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰে আপোনালোকে যদি বিচাৰে, 1793 যেতিয়া কৰ্ণৱালিছ আছিল, এই সময়ত এটা চাৰ্টাৰ এক্ট সাইন কৰা হৈছিল, চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793। যেতিয়া কৰ্ণৱালিছ আছিল এই সময়ত এটা চাৰ্টাৰ এক্ট সাইন কৰা হৈছিল। কোনে সাইন কৰিছিল? এইটো ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে পঠাইছিল। এইটো বাৰু এই চাৰ্টাৰ এক্ট মানে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে দিয়া আইন, তাৰ কাৰণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কাৰণে আৰু কমপ্লিট ইণ্ডিয়াৰ বাবে। চ' 1793 ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 পাব্লিছ কৰা হৈছিল। আৰু 1793 চাৰ্টাৰ এক্টত মেনশ্যন কৰা হৈছিল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰুল, ইণ্ডিয়াত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰুল আৰু 20 বছৰলৈকে এক্সটেণ্ড কৰা হ'ল। और 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। इसलिए देखिए 1793 लोगों जो अपने प्लस 20 যদি করে, প্লাস 20 ইয়ার্স যদি করে 1813 আকৌ এটা চাৰ্টাৰ এক্ট আহিল, ইয়াতে আকৌ 20 বছৰ প্লাস কৰা হ'ল, আকৌ 20 বছৰ প্লাস কৰা হ'ল 1833। এই কাৰণে চাব চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 বুলি এটা আছে, এনে লিখাটো লিখিব পাৰে, बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 বুলি এটা चार्टर एक्ट साइन करा হৈছিল। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में रूल को एक्सटेंड किया जाता था कि और 20 साल रहो, और 20 साल रहो, और 20 साल लूटपाट करो, ऐसे। समझे कि नहीं? ओके, এতিয়া আপোনালোকৰ যদি মনত আছে 1813 আকৌ মেইন ফোকাস হল 1813, মেইন ফোকাস হল 1813। So 1813 কি হল, ইয়াৰ আগলৈকে 1813 আগলৈকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ট্ৰেড মনোপলি আছিল। কি আছিল? ট্ৰেড মনোপলি মানে जो चाहे वही उसको बिजनेस कर सकता है, कोई रोक टोक कुछ नहीं है। वो जो चाहे वही इंडियन फार्मर के थ्रू उसको ही उगाएगा, उसको ही ग्लोबल मार्केट में बेचेगा और करोड़ों में कमाएगा। दैट वाज द मेन इंटेंशन ईस्ट इंडिया कंपनी। ताते इंडियार कोन सॉइलत, कोन माटित कोन बस्तु हुआ ভাল और ताते যাতে আমার ফার্মার বা আমার কৃষকসকলৰ যাতে কোনো ক্ষতি নহয়, এটো সোয়া কোনো কথাই নাছিল। मुझे ये चाहिए, ग्लोबल मार्केट में इसका ज्यादा डिमांड है, तुम इसको इधर ही ये करोगे, मैं जो बोलूंगा वही करना है। এনেকে একটা ট্রেড মনোপলি আছিল আৰু ইয়াৰ এগেইনষ্টত ফাৰ্মাৰৰ কোনো পইচা পাতি একেবাৰে মিনিমাল এটা পইচা দিয়া আছিল। क्लियर? 1813 आहार पिछोद एक ट्रेड मोनोपोली कि मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, ये बंद कर दिया गया है। ट्रेड मोनोपोली एंडेड 1813 ट्रेड मोनोपोली एंडेड थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। এই যে চার্টার অ্যাক্ট অফ 1813 যে আহিল, ইয়াৰ জৰিয়তে এই চার্টার অ্যাক্টৰ জৰিয়তে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীৰ যেটো বিজনেস তাতে দুটা कंडीशन दी दिले। कंडीशन की कि आप लोग सिर्फ ट्रेड करेंगे विथ चाइना, आप चाइना के साथ सिर्फ ट्रेड कर पाएंगे, बाकी कोई भी देश के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड नहीं करेगा। जो करना है ब्रिटिश क्राउन खुद करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगा। ठीक है? वो लोग ज्यादा 2 नंबर कर रहा था, घूस ज्यादा ले रहा था, तो आप सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड कीजिए। दूसरा बात क्या है, आप कोई भी चीज इधर से लेंगे और ट्रेड करेंगे, ये संभव नहीं है। अपने जी से यार परा कोई बेलेग जगह দিব এনেকে সম্ভৱ নহয়। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অকল দুটা বস্তু ট্ৰেড কৰিব এতিয়াৰ পৰা, এটা হল টি আৰু এটা হল ওপিয়াম, চাহ আৰু গাঁজা।
क्लियर? टी और ओपियम में सिर्फ ट्रेड कर पाएंगे, ये छोड़ के बाकी किसी चीज में ट्रेड आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात है, आप सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, दूसरा किसी देश के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड नहीं कर पाएगा। बात समझे कि नहीं? तो तीन चीज इसमें से अभी तक ऑलरेडी दो चीज आप समझ गए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और जरूरी होते 1813 चार्टर एक्ट और जरूरी होते। फर्स्ट की होल ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আরো 20 বছর ইন্ডিয়া থাকিব, এটু ডিসাইড হল। দুই নম্বর কি হল, ট্রেড মনোপলি হেক করে দেওয়া হল, খতম করে দেওয়া হল। तीन नंबर की होल कि ट्रेड मोनोपोली ट्रेड आप कर पाएंगे कौन सा देश के साथ? सिर्फ चाइना के साथ। और आप कौन सा चीज के ऊपर ट्रेड करेंगे? टी और ओपियम के ऊपर। लास्ट में और एक चीज बोला गया था, और एक चीज बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की कोशिश, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रति बছর हर एक साल 1 लाख रुपया ब्रिटिश क्राउन को देगा। 1 लाख रुपया 1 लाख पर ईयर কাক দিব? ব্রিটিশ ক্রাউনক দিব। কিয়? ব্রিটিশ ক্রাউনে এই 1 লাখ টাকা ইন্ডিয়ার এডুকেশনের কারণে খরচা করব। ये 1 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए हर एक साल देने का कंडीशन हुआ था, लेकिन ये सब चोर साला एक कभी भी नहीं दिया, कभी भी 1 रुपया नहीं दिए लोग। ठीक है, 1 लाख रुपया पर ईयर चार्टर एक्ट में लिखा हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी 1 लाख रुपया नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक करके आज का कहानी खत्म करेंगे। छोटा सा मतलब 5 मिनट मैक्स टू मैक्स। सो 1813 লেকে আহি গৈছো আমি। 1813 কি ডিসাইড হল? চাইনাৰ লগত ট্ৰেড কৰিব, হয়নে নাই? এতিয়া অলপ চাব, অকল চাইনাৰ লগত ট্ৰেড কৰিব, বেলেগ কোনো কাণ্ট্ৰিৰ লগত এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ইণ্ডিয়াত মেইন চেণ্টাৰ কি আছিল? সদায় মই কৈছিলো ব্ৰিটেনৰ মেইন ফোকাस ক'ত আছিল? बेंगल, सदाय बेंगल। तो इन लोग का ज्यादा से ज्यादा चीज होता था बेंगल में, थ्रू इंडियन ओशन। इंडियन ओशन कहा जाएगा? अलग अलग यूरोप देश में भेजता था। अगर आप देखेंगे मने मन में गाली नहीं देना है, ठीक है? अभी देखिए, याते आसे बेंगल, याते आसे चाइना। इतना बेंगलोर लगत चाइनार अकल ट्रेड खाली एप्लीकेबल, बेलेग ठाई तो जाबो ही नवारे। तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा। मैं इधर घूम घाम के कहा जाऊंगा? डायरेक्ट इधर जाएंगे। जाते वक्त दिक्कत क्या हो गया, इधर मिलना शुरू हुआ नेपाल, इधर आपका है नेपाल, लेकिन नहीं, तो नेपाल के थ्रू उनको जाना पड़ेगा, नेपाल के थ्रू। नेपाल बोला है, ये बाबा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा चाइना के साथ, जाएगा मेरे देश के ऊपर से, बिना टैक्स दिए संभव है? टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भाभी अरे इतना सब मराठा सब अभी गया, ये कौन सा नेपाल है, इसको भी हरा देंगे, हरा के इसको बाद क्या टैक्स देंगे, इसको हरा के ही जाएंगे। बहुत बढ़िया। 1814 to 1816, 1813 ডিসিশন হল যে চাইনার লগত অকল ট্রেড করব। 1814 to 1816 এই 2 বছর এই ট্যাক্সর ঝামেলার বাবে এংলো নেপাল ওয়ার হল। এতিয়া নেপালী যে কি বস্তু ये आगे गम पा ना, बिकॉज इंडिया पा नहीं, मुगल पाले, मराठा पाले, मैसूर पाले, की पाले। तो ये भाभी सर क्या है, सब तो एक ही है, हरा देंगे, क्या दिक्कत है? जेतिया नेपाल लोग युद्ध स्टार्ट हल तेतिया गम पाले बाप रे बाप, ये तो बेया खतरनाक बस्तु है, माने अवस्था बेया कर दिले, और ब्रिटेनर अवस्था बेया कर दिले। सो ये गोरखा क्या चीज होता है, तब जाके ब्रिटेन को पता चला कि गोरखा क्या चीज होता है। অবস্থা একেবারে কাহিল করে দিলে, বেয়া করে দিলে অবস্থা একেবারে। ইয়ার পিছত মোটামুটি অবভিয়াসলি ব্রিটেনের পাওয়ার বেশি, আর্মস অ্যামিউনিশন বেশি, বহুত বেশি। সো বহুতখিনি ক্যাপচার হয়ে গল। মোটামুটি নেপালৰ 1/3 ক্যাপচার হয়ে গৈছিল। 1/3 অফ নেপাল, 3 ভাগৰ 1 ভাগ ক্যাপচার কৰিব পাৰিছিল। 1/3 ক্যাপচার হৈছিল, বাট
ये एक एकलौता एक जगह है, आगे चलकर अफगानिस्तान भी देखेंगे, ये एकलौता मतलब ऐसा एक जगह है नेपाल जिसको ब्रिटेन कभी भी पूरा पूरी कैप्चर नहीं कर पाया। कैन या कुड नेवर कैप्चर नेपाल कॉम्प्लीटली। नेपालक केতিয়াও कॉम्प्लीटली कैप्चर কৰিব পৰা নাই, कभी भी पूरा पूरी कैप्चर नहीं हुआ, 1/3 तक कैप्चर कर पाया था। उसके बाद ये 1/3 कैप्चर करते करते इंग्लिश का हालत हो गया था खराब, इसलिए एक ट्रीटी साइन हुआ। इसीलिए ये जो 1/3 कैप्चर होने के बाद जब देख रहे थे हालत खराब कर देंगे, तब एक ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ सॉर्ली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ सगौली, सॉरी इसका स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर दीजिए, रुकिए, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुआ कौन से ईयर में? ऑब्वियसली जिस साल में बैटल खत्म हुआ, मैंने 1816 में। 1816 नेपाल और रोजा और ब्रिटिश पावर और মাজত ट्रीटी एटा साइन हॉल, ट्रीटी ऑफ सगौली। क्लियर? अभी ये जो बैटल हुआ था एंग्लो नेपाल वॉर, इसके बाद ब्रिटिश पावर गोरखा से इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि वो लोग बाद में उन लोग के आर्मी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाया, जो कि आज भी इंडियन आर्मी में है, गोरखा रेजिमेंट। बिकॉज ये पर्टिकुलर बैटल के बाद उनको पता चला कि गोरखा वैसा है कि मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करने वाले। वो टैक्स वैक्स लेंगे, सरेंडर करेंगे, कोहिनूर दे देंगे, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, माई बाप, वो सब नहीं है, मरेंगे या मरेंगे, सिंपल बात है। तो इसको हराना उतना संभव है नहीं। उससे इंप्रेस होकर बाद में गोरखा रेजिमेंट बनाया गया, जो आज के दिन भी इंडियन आर्मी में है। क्लियर? सो हमें ऑलरेडी मोटामोटी 1816 लेके आईसु लाहे 1816 लेके हमारा आहा होल लास्ट होल 1816 होल। बिकज আমি চাব আমার মারাঠা আর মাইসোর এফালে যুদ্ধ কেটা হল। সো আমার মাইসোরত তো অলরেডি 1799 টিপু सुल्तान वाज किल्ड, माइसोर ऑलरेडी कैप्चर्ड। मराठा पुना वॉर के बाद 1802 के बाद हालांकि बैटल हुआ था लेकिन पूरा पूरी कैप्चर नहीं किया था। लेकिन ये टाइम आते आते 1816 आते आते माराठा आको अलग बेसी पावरफुल हुआ निश्चय हो तो गम पाले इसको छोड़ देना सही नहीं होगा, माराठा को छोड़ देना सही नहीं होगा। यही कारण है 1816 पर 1819 1816 पर 1819 लेके थर्ड एंग्लो माराठा वॉर, थर्ड एंग्लो माराठा वॉर होल। ठीक है, এই পার্টিকুলার যেটো যুদ্ধ থার্ড এংলো মারাঠা ওয়ার, এই যুদ্ধ ব্যাটেল অফ পিন্ডারি বুলি কোৱা হয়। ব্যাটেল অফ পিন্ডারি, ব্যাটেল অফ পিন্ডারি বুলিও কোৱা হয়। আৰু এই পার্টিকুলার যুদ্ধত কমপ্লিট মারাঠা ওয়াজ এনেক্সড, কমপ্লিট মারাঠা কিংডম ক্যাপচার করা হৈছিল। কমপ্লিট মারাঠা किंगडम was annexed माने कैप्चर हो गल। क्लियर हो गल, कमप्लीट माराठा कैप्चर हो गल, माइसोरो हो गल, मुगलो हो गल। एते যদি আপনার কোশ্চেন এটা জাস্ট লাস্ট টু এন্ড উইথ লাস্ট 1 মিনিট যদি এতে আপনি মেইন যদি ইন্ডিয়ার পাওয়ার কেটা চাই, ইন্ডিয়ার যেটো মেইন পাওয়ার আছিল এটা আছিল আপোনাৰ মুঘল হল ওয়ান অফ দ্য মেইন পাওয়ার আছিল ইন্ডিয়ান। দেন আছিল মাইসোর, है ना, হায়দার আলী, টিপু সুলতান, আৰু এটা আছিল মারাঠা। এতিয়া আপুনি চাব এই তিনিটা পাওয়ার কিন্তু অলরেডি ইন্ডিয়া তিনিটা पावर কিন্তু ব্রিটিশে कैप्चर कर लिया। मुगले कैप्चर करा कौन ईयर दिन? मुगल पूरा पूरी इंडिया का ब्रिटिश कैप्चर कर लिया था, कौन सा ईयर देंगे बोलिए?
कौन से ईयर में मुगल को बोल सकते कि मुगल को पूरा खत्म कर दिया? खत्म 1764 बैटल ऑफ बॉक्सर, 1764 बैटल ऑफ बॉक्सर है ना, बैटल ऑफ बॉक्सर, शाह आलम द सेकेंड, मीर कासिम शुजाउद्दौला, शाह आलम द सेकेंड मुगल एम्पायर, इसके साथ तो टीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था, वो तो हालत खराब उधर, उसका मुगल खत्म, उधर मुगल का उसमें से रूल खत्म हो गया। मैसूर, मैसूर कब खत्म हुआ? 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर ওয়ার। এই ফোর্থ অ্যাংলো মাইসোর ওয়ারের জড়িয়তে মাইসোর কমপ্লিটলি ক্যাপচার। মারাঠা 1819 থার্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার, থার্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার, থার্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার, যেটাকে আমি কি বুলি কব পাৰো? পিণ্ডাৰী ওয়ার বুলি কব পাৰো, পিণ্ডাৰী ওয়ার, যেটাকে আমি পিণ্ডাৰী ওয়ার বুলিও কব পাৰো। সো বেসিক্যালি ইন্ডিয়ার মেইন তিনিটা পাওয়ার, ইন্ডিয়ার যে মেইন তিনিটা পাওয়ার আছিল মুঘল মারাঠা মানে এম মুঘল মারাঠা মাইসোর কমপ্লিটলি আহি গল इंडियर सॉरी इंग्रेजों हाथों। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास खत्म इधर, अभी आप लोग सिर्फ ये देखिए नेक्स्ट अभी वो कहा जाएगा, ब्रिटेन अभी धीरे धीरे कहा जाएगा। एक आएगा आपका अफगानिस्तान के तरफ जाना है, बिकॉज तब इंडिया का ही सब ये पार्ट हुआ करता था। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश এই সময়ত কিন্তু বেলেগ বেলেগ নাছিল, এটাই আছিল, হয় না নাই? সো এতিয়া লাহে ধীৰে মানে নর্থ ইন্ডিয়া কিন্তু কোহিনুর ডায়মন্ড দি টেম্পোরারিলি একটা চুক্তি করা হয়েছিল, ক্যাপচার করা বাকি আছে, ক্যাপচার করার কারণে যাব। আমার অসম, हमार इधर जो हम लोग का है बर्मा, असम, मणिपुर, ये भी कैप्चर करने आएगा, जिसके लिए आप लोग असम हिस्ट्री में टीटी ऑफ यानडब्बू पढ़े 1826, जहां से आपका असम हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट शुरू होता है, वो भी करने आएगा। और ये सब होते होते अलग अलग आपका टैक्सेशन आने लगेगा, टैक्सेशन आने लगेगा, तो ये बहुत साल तक चलेगा। कुछ साल जाने के बाद आपका कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा, उसके बाद गांधी आएगा, उसके बाद कहानी आपका खत्म होगा। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक खत्म। थैंक यू सो मच।